دنیا کی 8ویں پاورفل کنٹری، 85 لاکھ کی آبادی اور 22,000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ۔ ٹیکنالوجی اور سٹارٹ اپس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد بلوچ آفیشیل اور میں ہوں شاہد بلوچ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج میں آپ کو جس ملک کی کیس اسٹڈی دینے جا رہا ہوں وہ ہے دنیا کا واحد یہودی ملک اسرائیل۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں نے 60 لاکھ یہودیوں کا بے ایمانہ طریقے سے قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور اس کے نتیجے میں 1948 میں فلسطین کے کچھ علاقوں کو ملا کر ایک نئی یہودی ریاست کی بنیاد رکھی گئی جس کو اسرائیل کا نام دیا گیا۔ لیکن بہت ساری عرب کنٹریز کے ساتھ ساتھ پاکستان اور فلسطین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فلسطین اور پاکستان اور دوسرے ممالک یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ناجائز طریقے سے قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ بننے کے ساتھ ہی اسرائیل کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، جن میں بہت سارے بیرونی خطرات بھی تھے اور اپنے اندر کی حکومت کو بھی اسٹیبل کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی 20 سال کے عرصے میں ہی اسرائیل اور عرب کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس جنگ میں اسرائیل عربوں کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، جس میں سیریا کی گولان ہائٹس، اس کے ساتھ ساتھ لیبنان، مصر اور جارڈن کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ 6 دن جاری رہنے والی اس جنگ کا نتیجہ اسرائیل کی فتح میں نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جارڈن کی بیس پہ کھڑے 400 مصر کے جہازوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نے 20 سالوں میں کس حد تک ترقی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ایک شہری کو قتل کریں گے تو میں آپ کے 10 شہریوں کو قتل کر دوں گا۔ اس بات کو میں یوں سمجھانا چاہوں گا کہ 1972 میں میونک میں ہونے والے اولمپکس میں اسرائیل کے 11 کھلاڑیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور جس کا الزام اسرائیلی گورنمنٹ فلسطینی مجاہدین پر عائد کرتی ہے، اور جس کے کچھ ہی دنوں بعد 1000 سے 2000 کے قریب فلسطینی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے وزیر اعظم ان قتل ہونے والے کھلاڑیوں کے گھر جا کر تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان تمام کھلاڑیوں کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ تمام تر ذمہ داری موساد کو سونپ دی جاتی ہے، جو کہ اگلے 16 سال تک دنیا کے مختلف ممالک میں ان تمام افراد کو ڈھونڈتی ہے کہ جو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کھلاڑیوں کے قتل میں ملوث تھے، اور ان کو پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اپنی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر چکا ہوتا ہے، اور اسرائیل وہ واحد کنٹری ہے دنیا میں جو کہ اپنے تمام تر علاقوں میں اینٹی بیلسٹک میزائل نصب کر چکا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کنٹری، کوئی اس کا دشمن فضائی راستے سے اس پہ حملہ کرتا ہے، چاہے وہ پھر میزائل ہو یا راکٹ ہو یا کوئی جہاز، یہ اینٹی بیلسٹک میزائل اسے فضا میں ہی تباہ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے روبوٹس بھی تیار کر رکھے ہیں کہ اگر فوجیوں کی تعداد کم پڑتی ہے تو یہ روبوٹس اسلحے سے لیس ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اسرائیل نے اس سے آگے جا کر اپنے تمام تر ملک کے علاقوں میں بنکر بھی بنا کے رکھے ہیں، جیسا کہ اسکول ہو یا کوئی کالج ہو، ہاسپٹل ہو یا یونیورسٹی ہو، شاپنگ مال ہو یا کوئی بھی پارک، ہر جگہ بنکر بنا دیے گئے ہیں۔ اگر کبھی کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو تمام تر شہری ان بنکرز میں جا کر چھپ جائیں اور اپنی جانوں کو بچا سکیں۔ آج اسرائیل دفاعی طاقت میں اتنا کامیاب ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو اپنی ضرورت کے حساب سے بناتا بھی ہے اور اسے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، اور وہ فوجی ساز و سامان ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت اس سے ہتھیار خریدنے میں سر فہرست ہے۔ اسرائیل کے اندر
तमाम शहरियों को फौजी ट्रेनिंग लेना लाजमी है। अगर वो मर्द है तो 3 साल और अगर वो औरत है तो उसे 2 साल ट्रेनिंग लेना होगी। इजराइल के अंदर तमाम तर बड़ी कंपनियों के दफातर मौजूद हैं। दुनिया की तमाम तर ब्रांड, तमाम तर कंपनियां इजराइल में अपना दफातर खोलना चाहती हैं, जिसकी बुनियादी वजह इजराइल के अंदर मौजूद उनकी स्टेबल पॉलिसी, उनकी स्टेबल गवर्नमेंट, उनका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इसके साथ साथ उनकी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं। उनके बाहर की सूरत हाल जो भी रहे, लेकिन उनके अंदर की पॉलिसीज़ हमेशा स्टेबल रहती है और कंसिस्टेंट रहती है। इस बात का इदराक बिल गेट्स और वॉरेन बफेट इस अंदाज में कर चुके हैं। इतने सारे मसाइल के बावजूद अगर कोई कंट्री अमेरिका के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेबल है या सेफ है तो वो इजराइल है। यहाँ ये बात गौरतलब है कि अगर आप नेस्डेक में देखें तो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा कंपनीज जिस मुल्क की हैं वो इजराइल है। अगर आप यूके, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, साउथ कोरिया की कंट्रीज़ को मिला लें तो भी नेस्डेक में इजराइल की कंपनियों की लिस्ट ज़्यादा है। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हमसे 1 साल बाद बनने वाला ये मुल्क आज किस कदर तरक्की कर चुका है और हम किस कदर पीछे रह गए हैं। इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मुकाबले में वो सरे फहरिस्त मुल्कों में शुमार होता है, जबकि इनोवेशन में हमारा 99 नंबर है और हम मज़ीद पीछे से पीछे होते जा रहे हैं और वो हमसे किस कदर आगे निकल चुका है। दुनिया की तमाम तर बड़ी टेक कंपनीज़ का R&D सेंटर इजराइल में है। वो इसलिए कि इन कंपनीज़ को यकीन है कि वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, वहाँ की पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहेंगी और वो एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं जिसमें बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए इजराइल ने अपने अंदर एक इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है कि जो कि इजराइल की GDP का 4.5% रिसर्च एंड इनोवेशन और डेवलपमेंट पे खर्च करती है। ये दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा खर्च होने वाला GDP का हिस्सा है जो कि इजराइल खर्च करता है। अब आपको बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की पहली जो विंडो बनाई गई थी वो इजराइल में बनाई गई थी। सिस्को ने अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी इजराइल में डेवलप की। मोटोरोला का सबसे पहला फ़ोन जो कि एक ब्लॉक की शक्ल में ईंट जैसा था वो इजराइल में ही बनाया गया और उस फ़ोन को छोटा साइज़ में भी इजराइल में ही बदला गया। USB पोर्ट और USB डिवाइस जो कि पेन ड्राइव कहलाती है वो भी इजराइल में बनाई गई। IBM का अमेरिका के बाद सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर इजराइल में है। बायोटेक स्टार्टअप्स दुनिया में सबसे ज़्यादा इजराइल में हैं। वॉइसमेल टेक्नोलॉजी सबसे पहले इजराइल में बनाई गई। दुनिया का पहला एंटीवायरस भी इजराइल में बनाया गया। इजराइल मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है। इजराइल की ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में तमाम तर प्रॉब्लम्स को एनालाइज करती हैं। उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो अपनी लेबॉर्ट्रीज, अपने इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर से कहते हैं कि इस पे काम किया जाए और इसका सोल्यूशन निकाला जाए। सोल्यूशन निकालने के बाद वो सबसे पहले अपनी कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन चूँकि उनकी आबादी बहुत महदूद है और उनके लिए वो एक बहुत बड़ी मार्केट साबित नहीं हो सकती, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपनी उस टेक्नोलॉजी, अपनी रिसर्च को वो पेटेंट करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसके कॉपीराइट हासिल करके वो उसको दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक में सेल आउट कर देते हैं। उसके मुख्तलिफ मॉडल्स को वो यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कि फ्रेंचाइजी हो गया या डिफरेंट तरीके से। और इसके लिए करते क्या हैं कि वो टेक ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरी दुनिया में उसको ट्रांसफ़र करते हैं उस टेक्नोलॉजी को, और जिससे GDP ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। देखिए, अमेरिका में हर 10,000 में से 80 लोग रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जबकि अगर इजराइल की बात की जाए तो यही तादाद इजराइल में हर 10,000 में से 120 रिसर्च साइंटिस्ट की बनती है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए इजराइल इस मकाम तक पहुंचा कैसे, उनकी कुछ पॉलिसीज़। देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ, वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट, वो सब लोग अपने मुल्क से मुखलिस हैं। उनकी तमाम तर पॉलिसीज़ अपने मुल्क के लिए हैं, उनकी तमाम तर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने मुल्क के लिए खालिस है। वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं
वो एक कौम होकर काम करते हैं, जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और मैं चंद आपको उनकी पॉलिसीज़ का बताता चलूँ कि जिसकी बुनियाद पे वो इस कदर तरक्की कर चुके हैं। इजराइल दुनिया के तमाम तर स्टार्टअप्स को कहता है कि आप आइए हमारे मुल्क में और यहाँ आके अपने स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। इजराइल कहता है कि आप हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बैठिए, अपना स्टार्टअप का आइडिया डिस्कस कीजिए उनसे। अगर तो आपका आइडिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट होता है तो उसके ऊपर आने वाली तमाम अखराजात यानी कि जितनी भी फंडिंग आपको रिक्वायर्ड होगी वो हम करेंगे। मिसाल के तौर पर 10 करोड़ या 20 करोड़ वो आप हमसे लीजिए और अपने आइडिया पे काम कीजिए। अगर तो आपका आइडिया कामयाब हो जाता है तो इसके बदले हमें सिर्फ आपसे एक मामूली सा इंटरेस्ट चाहिए होगा, जो कि हम आपके ऊपर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर चार्ज करेंगे। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपसे इन्वेस्टमेंट वापस नहीं मांग रहे। आप जाइए दोबारा एक नए आइडिया पे काम कीजिए और फिर से आइए हमारे पास, फिर से उस पर काम कीजिए, हम फिर से आपको फंडिंग करेंगे। इससे होता क्या है कि लोगों के काम करने में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, फेलियर का डर उनके दिमागों से निकल जाता है, जिसकी वजह से और मज़ीद अथॉरिटी के साथ लगन के साथ काम कर पाते हैं और इससे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इजराइल दुनिया के तमाम वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट उनको कहता है कि आप आइए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए और हम आपसे कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। यानी कि अगर वीसी जो है वो इजराइल में जितना भी कमाता है वो तमाम तर इनकम उसकी अपनी, जिससे उनको एक मोटिवेशन ज़रूर मिलती है वीसीज़ को और वो इजराइल का रुख करते हैं। इजराइल को आज मिडिल ईस्ट का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। दुनिया की तमाम तर बड़ी कंपनीज अपने दफातर इजराइल में या तो खोल चुकी हैं या खोलने जा रही हैं या उस तरफ मूव होने का सोच रही हैं। देखिए, इजराइल एक और काम करता है। इजराइल करता ये है कि वो दुनिया के तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कहता है कि आप आइए और हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए। अगले 2 साल तक हम आपकी एम्प्लॉयज़ की जितनी भी सैलरी बनती है उसका 40% हम पे करेंगे। यानी कि अगर एक कंपनी जिसकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी एक महीने की 100 करोड़ बनती है तो इजरायली गवर्नमेंट हर मंथ 40 करोड़ उस कंपनी को पे करेगी अगले 2 साल तक, जिसके बदले वो कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में ऑफिस खोलिए अपने, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अब देखिए, इतना एक आइडियल बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलेगा, जिससे तमाम तर कंपनीज अब अपने बिजनेस को इजराइल में बेस बनाकर करना चाहती हैं। वहाँ हर तरह से बिजनेस को प्रोटेक्शन हासिल है। कंपनीज के ग्रो होने के चांसेस दुनिया के किसी भी और मुल्क की निस्बत इजराइल में ज़्यादा है और आपको उनकी पॉलिसीज़ में कभी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा या चेंज होती हुई नज़र नहीं आएंगी। इजराइल यहाँ इतनी पॉलिसीज़ बिजनेस के हवाले से इस्टेब्लिश करता है, वहीं कुछ उसने कानून भी बना के रखे हैं कि जिनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। जैसा कि वहाँ सूअर पालना अलाउ नहीं है और अगर आप पालेंगे तो आपको सज़ा हो सकती है और उस सूअर को भी कत्ल कर दिया जाएगा। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको उसका लाइसेंस लेना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अगर दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी बच्चा पैदा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली इजराइल की शहरियत मिल जाती है और वो किसी भी वक्त इजराइल आकर रह सकता है। इजराइल पानी की कमी से जूझता मुल्क है, लेकिन वो अपने ही यूज़ किए हुए पानी यानी कि वेस्ट पानी को रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ के इस्तेमाल के काबिल बना लेता है और यही अमल उसने एग्रीकल्चर में भी अपनाया है। इसी तरीके से वो एग्रीकल्चर को भी यूज़ किए हुए पानी से दोबारा यूज़ करके सैराब करता है और उससे फ़ायदा उठा रहा है। ये सब कुछ हासिल करने में इजराइल ने जो स्टेप्स उठाए हैं या जिस हद तक उसने इसमें कामयाबी हासिल की है वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। मज़ीद न्यू वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें
دوبارہ کسی نیو کیس اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.